Nishika, if I ask you a question, how much is your weight? What is the answer? 60. 60 kg. Okay. How much is your height? 5 foot 4 inches. Okay, ठीक है. How much is the distance of your home from Sambalpur? 16 kilometers. Okay. How much is the distance of your school from your home? Sir, 5 kilometers. Okay. So can you see it here that whenever I'm putting a question using the word how much, kitna, तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारा height कितना है, then what is the answer I'm getting? I'm getting answer as 60 kg. I'm getting answer as 5 feet 4 inch. I'm getting answer as 16 kilometer. What are those? Those are a quantity, isn't it? Yes, sir. एक quantity है ना? So that is what is called as quantity. Whenever I'm putting a question that how much बोल के मैं जब भी question कर रहा हूँ, what I'm getting in answer? A quantity. I'm getting a quantity. Yes. Now, so चलो कुछ क्वांटिटी का एग्जांपल जैसे कि मैंने हाउ मच इज योर वेट, मतलब तुम्हारा जो आंसर जो आया 60 kg, दैट इज अ वेट. सो वेट इज अ क्वांटिटी. Yes, sir. हाइट इज अ क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, लेंथ इज अ क्वांटिटी. और कुछ एग्जांपल बताओ. नो आंसर. मिल्क का जो वॉल्यूम, हाफ लीटर या फिर जो लेते हैं, सो वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी. और टेम्परेचर इज ए क्वांटिटी. और अरे बहुत कुछ है. डेंसिटी इज ए क्वांटिटी, फोर्स इज ए क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए क्वांटिटी. तुम्हारा सामने में जो टेबल रखा है, टेबल का अलग अलग क्वांटिटी बताओ. उसका एक एरिया होगा, एरिया इज ए क्वांटिटी. उसका एक हाइट होगा, हाइट इज ए क्वांटिटी. उसका एक जो भी प्लेट होगा उसका एक डेंसिटी मास होगा, मास इज ए क्वांटिटी. यस सर. सो ऑल दोस आर क्वांटिटी. बहुत सारा क्वांटिटी. ठीक है. नाउ क्वांटिटी की जब भी मैं बात कर रहा हूँ, सो हाउ मच से मुझे आंसर आ रहा है. सो तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर. हाउ मच कितना समझ में आया? सर कितना समझ में आया? You can say थोड़ा सा, पूरा सा, थोड़ा थोड़ा. Can you measure it? No sir. You can't measure it. We can't measure our hunger. We can't measure our anger. We can't measure our feeling, our emotion. So those things are also quantity. But there are several quantity that we can measure, like mass, like velocity, like speed, like distance, like height, like density, volume, force, acceleration, momentum, energy, kinetic energy, potential energy. So those things can be measured. But there are certain things those cannot be measured. Thirst, hunger, anger, understanding, love, hatred. So those cannot be measured. So therefore, those are a separate quantity, and so the quantities that we can measure, they are called as physical quantity. Physical quantity. And the quantities, those cannot be measured, those are called as abstract quantity. तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी में मैंने जो एग्जांपल्स दिया वो सारे के सारे आएंगे, लेकिन इसमें हम आगे और नहीं बढ़ेंगे. हम बढ़ेंगे, हमारा पूरा साइंस आगे बढ़ेगा फिजिकल क्वांटिटी में. राइट? अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी की जब भी हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को फिर से दो कैटेगराइज किया जा सकता है. कैसे? देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर ए डायरेक्शन फॉर देयर डिटेल्स. जैसे कि फोर्स दे रहे हो, किस डायरेक्शन में दे रहे हो?
जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, मोमेंटम Yes, है sir. किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में. So direction matters in those cases. Yes, Whereas sir. there are certain cases where direction doesn't matter. जैसे कि तुम्हारा मास कितना है? How much is your mass? 60 kg you said, isn't it? Yes, sir. कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ या वेस्ट? It is not required. Mass में Yes, कोई sir. डायरेक्शन का जरूरत नहीं है. So that means mass can come in a category where direction is not required, whereas force Yes, can sir. come in a category where direction can require. So depending upon that, physical quantity is further divided into two categories. One is called as scalar quantity, and the other is called as vector quantity. Vector quantity. Yes, sir. Yes, scalar and vector. Scalar vector पढ़े होगे क्लास 9th में, I believe. Yes, sir. Okay, so scalar मतलब क्या होता है? इसका खाली मैग्नीट्यूड रहता है. Yes, sir. Only magnitude, and it has no direction. Whereas talking about vector, vector has both magnitude and direction. And because of its direction की वजह से, जैसे कि स्केलर के केस में, जैसे मैं मान लो तुम्हें पूछ रहा हूँ 3 + 2 कितना होता है? Sir. 3 + 2 5. 5 + 8 13. 13 + 7 20. 20 - 8 12. 12. ये सारा का सारा एरिथमेटिक्स रहता है हमारा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, arithmetic Yes, addition, sir. arithmetic subtraction. Those all sir. are valid only for scalar quantities. Vector के केस में ऐसा नहीं होगा. जैसे कि स्केलर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. वेक्टर में तुम्हारा 3 + 4 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी हो सकता है 3.5, 3.4, ये सारा का सारा हो सकता है. All these values are possible. So therefore vector addition, vector subtraction, that is vector arithmetics, is something different than scalar arithmetics. स्केलर में हम जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं ना, वेक्टर में वैसा नहीं होता. इसलिए Yes, हम sir. वेक्टर का सारा चीजें अभी पढ़ लेंगे, सो दैट आगे जो भी चीजें होगा वेक्टर के बारे में डिटेल्स मुझे और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. यस, सो लेट्स मूव अहेड with the concept of vector representation. So लिख लो headline, vector representation. वेक्टर को जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें क्या चीज, वेक्टर का दो चीजें रहता है. द फर्स्ट वन इज इट्स मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज इट्स डायरेक्शन. जब भी हम Yes, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. Yes, So sir. therefore हम वेक्टर को एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं. We represent the vector by means of arrows, where Yes, sir. the arrowhead represents the direction of the vector and the length of the arrow represents the magnitude of the vector. So therefore write down, a vector quantity is represented with an arrow a vector quantity is represented with an arrow comma head representing the direction and its length denoting the magnitude. Head representing the direction, arrowhead representing the direction and its length denoting the magnitude. For example, मान लो मुझे यहाँ पे एक बी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से मैंने दे दिया उसका मैग्नीट्यूड, इस तरह से दे दिया मैंने इसका डायरेक्शन. अभी ये बी वेक्टर है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगा ये बी वेक्टर है. डन. So this is the b vector and I am saying that this is b vector by writing it here. Yes, sir.
सिमिलरली मान लो मुझे ए वेक्टर लिखना है, सो मैं ऐसे करके दे दूंगा एंड दिस वन विल रिप्रेजेंट माय ए वेक्टर। यस, अगर ये Yes, ए sir. वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा तो फिर ये कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा? देखो उसका लेंथ डबल हो गया, ये मेरा जो Yes, sir. लेंथ जो हो गया ए वेक्टर का डबल हो गया, और उसका Yes, डायरेक्शन sir. क्या है? सेम है, सो देयरफॉर मैं Yes, इसको sir. लिखूंगा 2a वेक्टर। Yes, sir. तो फिर बताओ ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? 3a. 3a वेक्टर। ओके फाइन। अच्छा बताओ ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? minus a. Minus a vector, not only minus a, minus a vector। yes, this is what is Yes, called sir. as वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हम इसी तरह से वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। Yes, Then, देखो वेक्टर का दो चीजें रहता है। यस, वन इज Yes. कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज कॉल्ड एज डायरेक्शन। yes, sir. तो मैंने अगर ये दोनों को चेंज नहीं किया तो फिर वेक्टर चेंज हो ही नहीं रहा है। Yes, sir. और मैं अगर ये वेक्टर को अगर शिफ्ट करता हूँ तो फिर देखो ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है, इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ पर लेके आ गया। क्या मैंने डायरेक्शन को चेंज किया? नहीं। नहीं, क्या मैंने sir. मैग्नीट्यूड को चेंज किया? नहीं। नहीं, यहाँ से sir. लेके यहाँ को ले गया, क्या मैंने डायरेक्शन को चेंज किया? नो। डिड आई No. चेंज द मैग्नीट्यूड? नो। No, सो दैट sir. मींस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द सेम। Yes, sir. So this phenomena is called as vector vector का parallel shifting. So therefore write down the headline parallel shifting. Parallel shifting. Write it down. If a vector is shifted parallelly, if a vector is shifted parallelly without changing its magnitude and direction, without changing its magnitude and direction, then the vector remains same. Then the vector remains same. For example, let us consider here is a vector. And why? What I have done in this case is that I have shifted it parallelly to this position. मैंने क्या किया? इसको parallelly लेके चला गया। तो देखो ये वेक्टर का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में अपवर्ड, और उसका भी लेंथ जो है वो उतना ही है दो पैरेलल लाइन के बीच में। सो दैट मींस द वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेनिंग सेम, सो दैट मींस वेक्टर आल्सो रिमेनिंग सेम। इस वेक्टर को भी मैं ए वेक्टर बोल के मान सकता हूं। यस, Yes, sir. ये डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल शिफ्ट। नेक्स्ट लेट्स गो टू, ठीक है हमने वेक्टर तो देख लिए, चलो देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। Types of vectors. So in the first type, let's move and write it down. Parallel vectors. So here you can write it down. यहाँ पे लिख लो. If two vectors are having same direction, if two vectors are having same direction, then they will be said to be parallel vectors. Then they will be said to be parallel vectors. Example दे देता हूँ यहाँ पे। मान लो मेरा यहाँ पे एक वेक्टर है which is a वेक्टर, और यहाँ पे मेरा दूसरा वेक्टर है which is b वेक्टर। तो देखो both of them are having same direction, rightward, so that means Yes, they sir. will be
पैरेलल वेक्टर। पैरेलल। देखो इस केस में क्या है, हम देख सकते हैं कि ए वेक्टर का 2 गुना है बी वेक्टर, यस सर। 3 गुना भी हो सकता है उसी डायरेक्शन में, 4 Yes. गुना भी हो सकता है उसी डायरेक्शन में, 5 गुना भी हो सकता है उसी डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स हम इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, बी जो है ए का n टाइम्स हो सकता है, n टाइम्स ए बी वेक्टर, और उसका डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐसे करके एरो भी दे देंगे हम। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दैट इज इम्प्लाई देन one vector is scalar multiple of other, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, आधा गुना, right? That is implied then one vector is scalar multiple of other. उसको मैं इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ, b vector that is equals to n into a vector. This is called as parallel vectors. If two vectors are parallel, then this equation will be satisfied by them. Second, anti-parallel vectors. क्या हो सकता है? What could be the meaning of anti-parallel vectors? So which are not in the same direction. Not having Same direction. same direction. Okay. So ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है दोनों का, नहीं सर। तो दोनों एंटी पैरेलल है? हाँ सर। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। पैरेलल मतलब क्या है, दोनों सेम लाइन पे है। एंटी पैरेलल मतलब एक का डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा, so then it will Yes, become anti parallel. So we have to write it down. If two vectors are having opposite directions, if two vectors are having opposite directions, then they will be said to be anti-parallel vectors. चलो एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे। For example, let us consider here is a vector, and here is another vector, b vector. So then both of them are having opposite direction. एक rightward है तो फिर दूसरा upward, leftward है। एक upward होगा तो दूसरा downward होगा। So then they will be called as anti-parallel vector. So इस केस में ऐसा वाला रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ? देखो बाय मैग्नीट्यूड में बता सकता हूँ कि b is 2 times a. b is 2 times a. 3 times भी हो सकता है, 4 times भी हो सकता है, 5 times भी हो सकता है। So in short मैं बोल सकता हूँ b is n times a. लेकिन डायरेक्शन जब भी यूज करूंगा, देखो b का ऑपोजिट है, सो माइनस यूज करके यहाँ पे b को मैं लिख लूंगा। यस, तो देयरफॉर वहां पे लिख सकते हो, दैट इज इंप्लाइड इन वन वेक्टर इज negative scalar multiple of other. That is implied in one vector is negative scalar multiple of other. So in short, equation will be b vector will be equal to minus of n into a vector. So whenever two vectors are anti-parallel, उन दोनों में ये equation satisfy हो जाएगा। Yes, sir. करते हैं थर्ड, equal vectors. ओके, बताओ क्या हो सकता है? अरे दोनों चीजें सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। यस, सो देयरफॉर राइट डाउन, if two vectors are having equal magnitude and same direction, if two vectors are having equal magnitude and same direction, then they will be said to be equal vectors. Then they will be said to be equal vectors.
एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे। So let us consider here is A vector and here is B vector. So both of them are having equal magnitude and same direction. So therefore we can write down that there is implies an A vector will be equal to B vector. Next, unit vectors. या फिर यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, यहाँ वेक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक वेक्टर काफी है। क्या हो सकता है यूनिट वेक्टर का मतलब? सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। So therefore write down vector having magnitude 1 is called unit vector. Any vector having magnitude unity is called unit vector. तो फिर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हुआ तो फिर वो किस काम का हमारा रहा? वो हमें डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड का हमें कोई टेंशन नहीं ना। मैग्नीट्यूड 1 हो गया, उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर वो हमें डायरेक्शन दे देगा। सो देयरफॉर उसके नीचे लिख लो यहाँ पे यूनिट वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है यूनिट वेक्टर। यस सर। तो फिर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? एक वेक्टर से हमें डायरेक्शन निकालना है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड को 1 करना पड़ेगा। यस सर। इसमें कोई एक वेक्टर यस है, सर। मान लो ए वेक्टर है, इस वेक्टर्स का हमें डायरेक्शन जानना है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर हमें जानना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे इसका मैग्नीट्यूड को मैं डिवाइड कर दूंगा। मैग्नीट्यूड को इसी तरह से सिंबॉलिफाई किया जाता है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। सो देयरफॉर if vector is divided by its magnitude, if a vector is divided by its magnitude, comma, then we get a unit vector along its direction. Then we get a unit vector along its direction. For example, मान लो एक a वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड को मैंने इससे डिवाइड कर दिया। सो ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड्यूलस को ले लो। सो दिस वन विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ऐसे सिंपलीफाई करते हैं। कभी कभार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज आल्सो इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a को a ले लेते हैं। सो देन दिस वन रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर along a vector, along a vector, a vector की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यही चीज रिप्रेजेंट करेगा। और जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से सिंबॉलिफाई करते हैं। सो देयरफॉर दिस इज सिंबॉलिफाइड एज ए के ऊपर एक टोपी, ए कैप, एक टोपी पहना दी हमने। सो दिस इज कॉल्ड एज ए कैप, ए के ऊपर इस तरह का एक टोपी पहना दी। यस सर। So this one represents unit vector. So therefore देखो यहाँ पे so a vector divided by a हमें क्या आ गया, a cap आ गया। So that is implied an a vector क्या आ जाएगा, that is implied an a vector will be equal to a into a cap, a into a cap। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, any vector a vector can be represented as the product of its magnitude and its unit vector or unit vector along its direction। So any vector can be represented as its magnitude into the unit vector along its direction. Done. इसी तरह से हम कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Yes. Yes sir. Now you see, we have orthogonal vectors. Orthogonal vectors मतलब क्या रहता है? ऑर्थोगोनल एक्सिस रहता है एक चीज। ऑर्थोगोनल एक्सिस मतलब कौन कौन सा एक्सिस रहता है? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल एक्सिस। सो ऑर्थोगोनल एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर्स रहते हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दिया गया।
and they are represented as I के ऊपर कैप, J के ऊपर कैप and K के ऊपर कैप. So therefore make a star mark and write it down. Unit vectors along x, y and z axis unit vectors along x, y and z axis are called orthogonal unit vectors. Are called orthogonal unit vectors. ORTHOGONAL. Orthogonal unit vectors. And are denoted by I cap, J cap and K cap respectively. अच्छा, तो फिर देखो यहाँ पे मान लो x एक्सिस y एक्सिस है और यहाँ पे मान लो z एक्सिस है. x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस. सो ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना हो गया 90. अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा सर नहीं पता. बताओ बताओ. नहीं पता. नहीं पता. अच्छा, तुम्हें ऑर्थोगोनल एक्सिस मतलब पता है? ये x एक्सिस और y एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड z एक्सिस आल्सो परपेंडिकुलर टू देम. मतलब ये z एक्सिस पेज के ऊपर में है तुम्हारा, जहां पे तुम कॉपी में लिख रहे हो पेज से आउटवर्ड में है पेन को अगर रखोगे तो. So that means this z axis is also perpendicular to y axis. And actually diagram में हम draw नहीं कर सकते, ये 3D structure है. So therefore we are drawing it like that. Yes. So therefore यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक arrow head देके लिख लो x, y and z axis are mutually perpendicular to each other. X, Y and Z axis are mutually perpendicular to each other. Generally बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं. क्या बोल देते हैं ना, ये एंगल अगर 90 हो गया तो फिर ये एंगल जो हो जाएगा 360 minus 90 divided by 2 हो जाएगा. That means 135 हो जाएगा. बोलते हैं that is a mistake. ये 135 नहीं, ये 90 डिग्री है. This is Z axis which is perpendicular to Y axis as well as X axis. So x, y, z axis are mutually perpendicular. मतलब x, y को perpendicular, y, z को perpendicular, z, x को perpendicular. That is called as mutually perpendicular to each other. Yes. Okay. तो फिर x axis में जो unit vector रहता है, that is called as I cap. So इस direction में जो भी unit vector रहेगा, इस direction में जो भी unit vector रहेगा, that is represented as I cap. इस direction में जो भी unit vector रहेगा, that is represented as J cap. इस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर रहेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड एज के कैप. सो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर मतलब जे कैप, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर मतलब के कैप. इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे बोल के ऐसा कन्वेंशन आया है. यस, ऐसा नहीं कि सर क्यों आई जे के ए बी सी क्यों नहीं बाय कन्वेंशन ए बी सी भी ले सकते थे, लेकिन ये लिए क्योंकि हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ले आते हैं. जैसे हम रोड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम गाड़ी क्यों चलाते हैं, राइट पे भी तो चला सकते हैं. यूएस में राइट पे चलाते हैं नहीं, हम सब ने डिसाइड किया कि हम लेफ्ट में चलाएंगे. सो सिमिलरली पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में यही डिसाइड हुआ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में हम लोग आई कैप जे कैप के कैप लेंगे. वही चीज को फॉलो किया जा रहा है. दैट्स ऑल. तो यहाँ पे आई कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप का जो वैल्यू हो जाएगा, आई कैप विल बी इक्वल टू एनी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. है ना, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो सिमिलरली जे कैप क्या हो जाएगा, j cap will be equals to any vector along y axis divided by its magnitude. Similarly, if I am going to take k cap क्या होगा बताओ? z vector divided by its magnitude. Z vector divided by z. Very good. So that is imply then
any vector along x axis can be represented as x into I cap, its magnitude into I cap. So similarly बताओ y vector और z vector क्या हो जाएगा? सर y into j cap Good. और z वेक्टर हो जाएगा z into k cap. Very good. Z into k cap. So this is what is, कोई भी वेक्टर x y z में हो तो हम इसी फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So this is called as vector representation in terms of I cap, j cap and k cap. Vector representation in terms of I cap, j cap and k cap. Yes. Yes sir. So this is what is called as vector types. अभी देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना, वेक्टर जो रहता है उसका एरिथमेटिक्स अलग रहता है. एरिथमेटिक एडिशन, एरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन उसमें काम नहीं आता, उसमें एक अलग तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन काम आते हैं. सो चलो इन चीजों को हम देखते हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होता है, और उसी के साथ ये चैप्टर एंड होगा. सो लेट्स मूव अहेड एंड राइट डाउन वेक्टर एडिशन. अच्छा, यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हें मैंने मल्टीपल कलर पेन यूज करने के लिए बोला था. Yes Are you sir. using that one or single color you are using? Sir I'm using multiple color. Multiple color. So जहाँ पे भी मैं येलो कलर का यूज कर रहा हूँ, there you can use the black color. जहाँ पे भी मैं व्हाइट कलर का यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे you can use ब्लू कलर. और जहाँ पे भी मैं ये त्रिरंगा का तीसरा कलर ऑरेंज, ऑरेंज का कलर यूज करता हूँ, वहाँ पे you can use रेड कलर. मैं ब्लैक स्क्रीन इसलिए लिया हूँ ताकि आंखों में प्रेशर ना आए. For you also, for me also. So that is why I am taking this color. Okay, so let's move ahead. Vector addition. Vector addition हम दो तरह से सीख सकते हैं. The first one is called as triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. And second one is parallelogram law of vector addition. तो दो तरह से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. अल्टीमेटली विल गेट द रिजल्ट ओनली. रिजल्ट ही हमें मिलेगा जो कि वेक्टर एडिशन का होगा. They will representing the same thing, खाली दो अलग अलग तरह से इन चीजों को ऐड किया जा रहा है. That's all. Okay, so let's move ahead with triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition नाम से क्या लगता है? जानते हो क्या triangle law of vector addition? Yes sir. जानते हो? बताओ. सर भूल गई. फिर क्या जानते हो? मैं तुम्हें मान लो पूछता हूँ, आर यू 1 करोड़पति? तुम बोलेगे हाँ, दिखाओ पैसा. खर्चा हो गया तो क्या करोड़पति तुम रहे हो. Yes sir. अनिल अंबानी अभी थोड़ी ना कह सकता है मैं करोड़पति हूँ बोल के. हाँ, उसके पास होगा बट उतना भी नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? मान लो हम दो वेक्टर, अच्छा इसका स्टेटमेंट को पहले लिख लो. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे ना, वही दो वेक्टर. इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides of a triangle, if two vectors are represented by two sides of a triangle, comma, taken in same order, then the resultant
is given by, then the resultant is given by third side in opposite order. Third side in opposite order. So scalar में जब जैसे हम ऐड करते हैं 3 plus 4 is equals to 5. So we are adding two things ना, 3 plus 4. That is we are getting as 5. 5 को हम क्या कहते हैं? Result कहते हैं. The result is 5. Yes, So similarly, in case of vector addition, we are going to add two vectors, A vector and B vector. yes, And in this case, the result that we are getting, that is called as resultant. Resultant. yes, sir. So चलो देख लेते हैं कि resultant का वैल्यू क्या हो जाएगा. पहले क्या बोला, if two vectors are represented by two sides of a triangle. मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है, this is A vector. मान लो यहाँ पे दूसरा एक वेक्टर है, this is B vector. ठीक है. तो फिर अच्छा, बाय द वे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें वो सब चीज. तो फिर यहाँ पे क्या बताता है, इसका रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों वेक्टर को मैं अगर ऐड करूंगा तो फिर देखो ये ट्राइंगल का दो साइड बन जा रहे हैं. ये जब उसका तीसरा साइड हो जाएगा, ये दो साइड बन गया, ये तीसरा साइड हो गया. सो इट सेज दैट द वेक्टर एडिशन ऑफ ए एंड बी is basically taken in same order. देखो सेम ऑर्डर में पहले ये है, उसके बाद ये है, सेम ऑर्डर में आ गया. Yes, मतलब टेल से हेड एंड अगेन टेल से हेड, सेम ऑर्डर में आ yes, गया. sir. देन द थर्ड साइड, मतलब ये साइड, this one will give Third tail. the resultant and it will be in opposite order. It will be in Yes, opposite order. तो फिर इसका resultant मान लो R है. So पहला चीज resultant is also a vector quantity. Yes, sir. taken in some opposite order ना. So ये दोनों Yes. एंटी क्लॉकवाइज लेके गए, तो फिर ये देखो ये क्लॉकवाइज ले आ रहा है, taken in Yes. opposite order. So that means पहला चीज हमें समझ में आता है that resultant is also a vector quantity. मतलब resultant का दो चीजें रहेगा, क्या क्या रहेगा बताओ. Magnitude or direction. वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. उसको जानने से पहले हमारे यहाँ पे एंगल जानना बहुत जरूरी है. ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है? तुम्हें लगता होगा कि सर ये वाला एंगल है, एक्चुअली ये वाला एंगल नहीं है. ए और बी पैरेलल शिफ्टिंग करके यस tail यस, head और इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो दोनों का टेल को मैंने एक पॉइंट में रख दिया. yes, So then whatever is the angle between their direction, that is the angle. So whatever is the angle between their direction, इसका direction इस direction में, इसका direction इस direction में. So this one is the angle. So therefore yes, sir. angle को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ that this one is the angle theta. So in this case resultant is also a vector quantity, that means it is having magnitude as well as direction. इसका magnitude का फॉर्मूला को लिख लो. magnitude का फॉर्मूला रहता है r is equals to under root of पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस एंगल ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा. तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड. Yes. एंड इसका एक डायरेक्शन रहेगा. डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन मतलब क्या है? हम बोलेंगे कि सर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में. अरे इस डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक बताओगे? Yes, sir. तुम इस डायरेक्शन बोल लोगे, मैं इस डायरेक्शन को भी समझ सकता हूँ, इस डायरेक्शन को भी समझ सकता हूँ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो डायरेक्शन हम क्या बताएंगे? विथ रेफरेंस टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. हमें ए वेक्टर दिया गया ना, मतलब उसका डायरेक्शन दिया गया है, उसी के डायरेक्शन के हिसाब से हम इसका डायरेक्शन को बोलेंगे ये अल्फा एंगल ऊपर में. सो इन दिस केस tan अल्फा हमारा आ जाता है, tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है b sin थीटा divided by a plus b cos theta. फिर पहला चीज देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट आराम से आ जाएगा क्योंकि ए बी और थीटा तो दिया हुआ रहेगा. अगर ए और बी दे दिया तो उनका थीटा भी दिया हुआ रहेगा. सो ए दे दिया, बी दे दिया, थीटा दे दिया, तो ये वाला टर्म आ जाएगा एंड हेंस रिजल्टेंट आ गया. ए बी थीटा दे दिया मतलब बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड हमारा आ गया, मतलब tan अल्फा आ गया. tan अल्फा आ गया तो फिर अल्फा नहीं निकाल सकते, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
whatever is there on the right hand side. Yes, sir. तो अल्फा आ गया मतलब कितना एंगल ऊपर को है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, हमें पता चल गया, मतलब डायरेक्शन हमें पता चल गया। बाय द वे इसका प्रूफ दिखा दूं या फिर चलेगा? व्हाट डू यू वांट? सर चलेगा। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ उससे। ओके सर। ओके ठीक है, तो ठीक है, चलो मैं इसका प्रूफ तुम्हें दिखा देता हूँ। प्रूफ देखो, सेम डायग्राम को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ डायग्राम को। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर नीचे में लेके आ गया और ऐसे करके लेके आ गया, ठीक है। इसका लेंथ को ले लो, मान लो bx, ये नीचे का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसका लेंथ को मान लो by, चलेगा? Yes, sir. तो फिर मुझे बताओ यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा? Sure. by by b. ui divided Yes, by sir. b, वेरी गुड। cos थीटा कितना होगा? bx divided by b. Very good. It will be bx by b. Good. If so, then we can write it down that is implied then by will be equals to b sin theta. Here bx will be equals to b cos theta. Yes. अच्छा, यहाँ पे ये अल्फा एंगल क्रिएट करता है ऊपर को, उसको बाद में बता सकता हूँ। So now here what you can see, can we apply the Pythagoras theorem at here? देखो, this is one right angle triangle, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस बेस में, so that means this is one right angle triangle, right angle triangle में apply Pythagoras theorem. So applying Pythagoras theorem, I can see that मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ that r का स्क्वायर will be equals to a plus bx। देखो, इसका लेंथ मतलब इसका लेंथ a है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका लेंथ है bx, तो फिर ये हो गया a plus bx और ये हो गया by, तो ये हो जाएगा a plus bx का होल स्क्वायर प्लस by का होल स्क्वायर। यस और नो? सो लेट्स पुट द वैल्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर प्लस 2 into a into bx प्लस by का स्क्वायर। चलो पुट कर लो, bx by का वैल्यू को पुट कर लो, सो दैट विल बी इक्वल्स टू a का स्क्वायर bx का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 into a into b cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। Now in this case, can you tell me what will be this value? b square you can take as common, b square तो चलो Yes, कॉमन sir. ले, Cos square theta plus sin square theta 1 होगा। cos square theta मतलब वो 1 हो जाएगा, so ये अल्टीमेटली बन गया हमारा b square। Yes, sir. So let's put the value, so therefore this will be equals to a square plus b square plus 2ab cos theta, and hence this is what is the resultant का square. So that is implied that the resultant that we'll be getting is r is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Proved, पहला वाला। So that means यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, ये हाइपोटेनस का लेंथ, और ये हाइपोटेनस का लेंथ क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं है। So therefore रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारा प्रूव हो गया that r is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। खाली हमें ये tan अल्फा को बताना है, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे इसका ये डायरेक्शन है। Yes, sir. तो फिर यहाँ पे देखो, इसको मैं मान लो अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा, यस, which is representing the direction। तो फिर यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा,
फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड साइड। फ्रंट साइड Yes, क्या है? sir. by, कनेक्टेड साइड क्या है? a plus by. So therefore front side that is by and connected side that is a plus bx, sorry, a plus bx. So by का वैल्यू क्या हो जाएगा? b sin theta डिवाइडेड बाय bx का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, a plus bx का वैल्यू b cos theta आ गया। यहाँ से हमें एक बार we have calculated the value of tan alpha, then we can get the value of alpha. एक बार हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया, then I can say ये a से 15 डिग्री ऊपर रहेगा, 30 डिग्री ऊपर रहेगा, 45 डिग्री ऊपर रहेगा, and we can get the value of direction. डायरेक्शन उसी तरह से मिल जाएगा। इसको याद रखना होगा तुम्हें। Yes, is the point is clear? Yes, sir. Okay. So चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फटाफट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पे तुम्हें a का वैल्यू, b का वैल्यू, थीटा का वैल्यू दे रहा हूँ, तुम्हें रिजल्टेंट और अल्फा का वैल्यू तुम्हें निकालना है यहाँ पे, राइट? सो चलो मान लो यहाँ पे a वैल्यू दिया गया है, तुम्हें यहाँ पे b का वैल्यू दिया गया है और दोनों के बीच में एंगल दिया गया है। You have to calculate the resultant and the value of alpha. Yes, sir. The question दे रहा हूँ मैं। The first one, second one, third one. मान लो ये 10, 8, 60 डिग्री है। मान लो ये वाला है 6, 6, 90 डिग्री है। मान लो ये वाला है 10, 20, 120 डिग्री है। निकालो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा और अल्फा का वैल्यू क्या होगा Yes, sir. तीनों केसेस में। पहला वाला का आंसर आया Root 244. वेरी गुड, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 244 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? सर मैं निकाल रही हूँ, एक मिनट। ओके 2, 4, 8. आया गया। सर फर्स्ट वाले का अल्फा आया tan इनवर्स 4√3/14. that is 2√3/7. Very good. So here we get tan alpha is equals to 2√3/7. फिर यहाँ पे अल्फा जो हो जाएगा, अल्फा will be equal to tan inverse of 2√3/7. करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मूव अहेड, आगे बढ़ो।
Yes, sir. सर दूसरे वाले का आंसर रिजल्टेंट आएगा 8 और अल्फा आएगा 1। रिजल्टेंट आएगा 8 एंड अल्फा आएगा 1, गलत है। फिर ओ हाँ गलत है। अब देखो चेक करो, रिजल्टेंट तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 72 आता होगा, हाँ सर 72 में गलती की। दैट इज 6√2। और अल्फा का वैल्यू सर अल्फा का वैल्यू सही क्यों? tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा, यस और नो? हाँ सर 1 होगा। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू 45। यस सर। सॉरी, tan अल्फा इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स ऑफ 1 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या? ये इक्वल टू 1 मतलब अल्फा का वैल्यू यस कितना सर है? 45 डिग्री। 45। यस सर। मींस इस केस में रिजल्टेंट जो होगा 45 डिग्री क्रिएट करेगा वेक्टर ए के साथ। तीसरा वाला निकालो। Are you getting any WhatsApp message? नो सर। सर थर्ड वाले का थोड़ा डाउट है। बताओ। सर वो a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक मिनट a स्क्वायर में भी cos थीटा होगा। हाँ सर नहीं हो गया। रिजल्टेंट आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ 120। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है? सर माइनस -1/2 उसका स्क्वायर रूट। मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, फिर ये आएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये हो जाएगा 400 माइनस 200 उसका स्क्वायर रूट, so that means 300 square root, so that will be equal to 10. 10√3 will be the answer. Yes. यस सर। और अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? सर एक मिनट। सर अल्फा का वैल्यू आएगा 90। Yes, correct answer. 90 degree it will be. Very good. Okay, so चलो तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया। यस सर। Next. चलो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। अभी तुम्हें खाली ये निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है? यस सर। Question number 2. Let us consider here is one vector having a magnitude of 10 and here is another vector
having a magnitude of 8 and this angle is given as 120 degree. निकालो रिजल्टेंट कितना होगा. डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, खाली रिजल्टेंट निकालो. Sir, root 244. अंडर रूट ऑफ 244. वेरी गुड. Yes, sir. इसमें जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं ना, थीटा को 60 डिग्री ले लेते हैं, जबकि थीटा एक्चुअली में यहाँ पे आ जाएगा. थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, थीटा को 120 डिग्री ले लेते हैं, जबकि एक्चुअली थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगा. वो मिस्टेक Yes, कर रहे हैं. sir. गुड, you could detect it. Let us consider here is a vector having magnitude 3, here is a vector having magnitude 4. निकालो resultant. Sir, 5. Very good. Answer will be 5. In this case, angle between them is 90 degree. Yes, Theta sir. is equal to 90 degree. Okay. Next question. Let's consider here is one vector having a magnitude of 5, and here is another vector having a magnitude of 10, and this angle is given as 60 degree. अब निकालो रिजल्टेंट कितना होगा. Sir, root 75. रूट 75. थीटा को क्या लिए इस केस में? Sir, 120 degree. Yes, theta will be equal to 120 degree. Then hopefully correct answer होगा. Under root of 175 you are getting it? Sir, no, sir. 75. Under root of 75. Yes. हाँ, correct. Answer correct होगा. चलेगा. Next. अच्छा, मैंने मान लो तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया. Let us consider one vector is given at like this, 8 having magnitude. Another vector is given like this, its magnitude is 6. Vector addition करो. क्या कैसे करोगे? Sir, parallel shifting. Yes, very good. Now in this case you cannot apply the triangles law, isn't it? In this case you see the two vectors, they are not representing the two sides. तो फिर अभी हम क्या करेंगे? अभी हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे. ये वेक्टर को क्या करेंगे? पैरेलली यहाँ पे लेके आके रख देंगे. जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, इसको यहाँ पे लाके ऐसे करके रख दिया. Now they are representing the two sides of a triangle. Yes, So that you can, by parallel shifting, now you can apply the formula and get the value of resultant. निकालो resultant क्या होगा? Sir, 10. 10 आएगा. Very good. ये can you see this one? 8, 6, 10. Pythagoras triple है ना? Yes, sir. यहाँ पे भी 3, 4, 5 Pythagoras triple. So 90 डिग्री पे Pythagoras triple ही आएंगे. Yes, sir. Yes. Okay. Now next. अच्छा, यहाँ पे जो हमने अल्फा एंगल जो निकाले थे,
ये अल्फा एंगल किसके साथ था? ध्यान में देना, ये अल्फा एंगल ए वेक्टर के साथ क्रिएट करता है। ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल, दैट इज इंप्लाइड इन b sin थीटा बाय tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a plus b cos थीटा। अगर वो एंगल विथ b मांगा हुआ है, अगर वो एंगल विथ b मांगा हुआ है, तो a के जगह में b और b के जगह में a कर देना। So that means in that case tan alpha you will be getting it to be a sin theta by b plus a b plus a cos theta. yes, So in this case that alpha you will be getting that alpha is with b vector. Otherwise हमने जो normally use किया वो a vector के साथ है. Yes? yes sir. Okay, next. हाँ, इस केस में तुम्हारा आंसर आ गया है 10. मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, इस तरह का क्वेश्चन दिया, अच्छा इसको भी कर लो। चलो, let us consider this is one vector that is 3 and this is another vector that is 4. अब कैसे करोगे? अभी तो सेम ऑर्डर में नहीं है, पैरेलल शिफ्टिंग करके अगेन पैरेलल शिफ्टिंग, करेक्ट। सो इसको लाके यहाँ पे रख दो, 3 4 5 हो गया, isn't it? yes, या फिर yes, इसको लेके आके यहाँ पे रख दो, 3 4 5 अल्टीमेटली सेम। पैरेलल शिफ्टिंग से आंसर तुम्हें क्या मिल जाएगा? This will be the resultant and that is r vector, r vector का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, 3 4 5. यस, ओके। मान लो मैंने तुम्हें दिया यहाँ पे ये 6 हो गया, मान 7th में मैंने तुम्हें दिया, मान लो here is a vector 4 and here is a vector 6 and ऐसे करके अगर ज्वाइन करेंगे then this angle is given as 60 degree. Can you calculate the resultant? क्या करोगे? so ये एंगल अगर 60 डिग्री है मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री है, yes sir. ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो फिर इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके देखो, पैरेलली मैं अगर यहाँ पे ले आऊंगा तो फिर ये एंगल भी 60 डिग्री आएगा। yes sir. तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। चलो पुट करो और निकालो। yes sir. हाँ, Sir, under root of 76. अंडर रूट ऑफ 76. ओके, होपफुली आंसर इज करेक्ट। चलो मान लो मैंने तुम्हें दे दिया एक वेक्टर है दैट इज 12 i कैप प्लस 16 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालोगे? Sir, 12 plus 16. मतलब 28 हो जाएगा। नहीं sir. नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, इट इज ए वेक्टर, इट इज ए सम ऑफ टू वेक्टर। देखो 12 i कैप क्या है? इट इज ए वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यस और नो? Yes. whose magnitude is 12. 16 j कैप मतलब इट इज ए वेक्टर अलोंग y एक्सिस whose magnitude is 16. Yes तो sir. फिर ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90. 90 डिग्री। तो फिर पुट कर लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 2 into 12 into 16 into cos of angle between them। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो फिर बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 90 कितना होता है? 0। तो फिर ये टोटल थर्ड टर्म ही 0 हो जाएगा। बचा क्या? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। यस, 12 16 20
पाइथागोरस ट्रिपल, isn't it? Similarly मैं यहाँ पे पूछ लूं कि बताओ x I कैप प्लस y j कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2xi cos 90 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, सो cos 90 थर्ड टर्म तो जीरो हो गया ना, यस थर्ड टर्म जीरो हो गया, मतलब ये रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डन, वेरी गुड। अच्छा, मैंने अगर तुम्हें पूछ लिया बताओ तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तीन वेक्टर का मैंने एडिशन से पूछ लिया, बताओ क्या होगा, क्या हो सकता है, सोचो। सर नहीं पता। नहीं पता? देखो सिंपल, ये दो वेक्टर है x एक्सिस और y एक्सिस में x I कैप y j कैप, x और y एक्सिस में, isn't it? तो फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किस कहाँ पे होगा? xy प्लेन में होगा। यस सर। सो इन दोनों का रिजल्टेंट xy प्लेन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये सर लो इन्हीं दोनों का खाली। यस सर। फिर ये z k कैप क्या है? xy प्लेन को परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस सर। तो फिर ये वेक्टर को ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस सर। तो फिर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फिर पुट करो, क्या पुट करोगे? इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू z इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा बताओ? 90, उसका स्क्वायर रूट। अभी देखो थर्ड टर्म जीरो हो जाएगा। यस सर। तो ये तीसरा टर्म को टोटली जीरो कर दो बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या? इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही चीज को तो मैंने एक्सटेंड कर दिया ना आगे की तरफ। यस सर। यस सर। या फिर यहाँ पे जेड का वैल्यू तुम पुट कर दो 0, तुम्हें ये वाला आंसर आ जाएगा। सो दैट इज this is what is the way of getting the magnitude resultant. This is what is vector. इसीलिए तुम्हें समझ में आ रहा है वेक्टर एडिशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन। In this what you are getting, एक स्टार मार्क देके लिख लो। In this case the resultant is equal to, it is basically the magnitude of vector a plus vector b, which is nothing but a square plus b square plus 2ab cos theta का square root under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। yes or no? तो भाई देखो जब भी ये cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा ये a प्लस b का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जब भी ये cos थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा इसका वैल्यू मिनिमम होगा। तो फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब भी ये cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और cos थीटा का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0 है। यस सर। थीटा इज इक्वल टू 0 है, 0 मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर हम बात कर रहे थे ना, जब दो पैरेलल वेक्टर तभी जाके उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। और ये मिनिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। cos थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा। cos थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होता है? थीटा इज इक्वल टू जब 180 डिग्री होता है। सो दैट मींस ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। यस सर। दोनों वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। So here, so theta is equal to 0. That is implied then a plus b resultant will be the maximum and that is equal to कितना हो जाएगा बताओ? theta is equal to 0 पुट करके बताओ। सर a plus b होल स्क्वायर का अंडर रूट तो a plus b होगा। a plus b ही हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। एंड इफ
theta is equal to 180 degree, that is implied and we'll be getting the minimum value of vector a plus b, and इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करके बताओ। कुछ नहीं, ये थीटा की जगह में 180 डिग्री खाली पुट कर दो, जैसे इस केस में यस सर। थीटा की जगह में 0 पुट किए थे। सर a minus b। वेरी गुड। सो दैट मींस यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें? यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है a प्लस बी जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं, और मिनिमम वैल्यू हो जाता है a माइनस बी जब ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाते हैं, उल्टा ऑपोजिट हो जाते हैं, इजंट इट? यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो फिर मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो फिर मिनिमम, और अगर बीच में हुआ तो फिर वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रहेगा। यस सर। किसी भी तुम्हें याद है मैंने जब 3 + 4 का वैल्यू जब बताया था, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो फिर इसका वैल्यू क्या है? मैं सारा का सारा वैल्यू ये ले सकता है। यस सर। यस, सो दैट इज व्हाई वेक्टर एडिशन में हम ये नहीं बोल सकते कि 3 + 4 कितना होगा, उन दोनों के बीच में एंगल बताना बहुत जरूरी है। सो दैट इज व्हाई वेक्टर एडिशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन। सो वेयरएवर इन फिजिक्स जब भी तुम्हें एडिशन की बात आएगा ना, पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए कि मैं वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ या फिर स्केलर्स को ऐड कर रहा हूँ। स्केलर्स को ऐड कर रहा हूँ आप बंद करके जैसे एडिशन पढ़े थे अभी तक क्लास 10 तक उसी को अप्लाई कर लेना, लेकिन जैसे ही वेक्टर का एडिशन आता है तो फिर याद रखना वेक्टर का एडिशन √(a² + b² + 2ab cos θ होता है।